Okay, good morning, children. Today, my last class I explained the formulas of exponents and we were doing the questions. So, today's class we are further proceeding with that topic only. Very simple topic. See, 2 to the power, this is third question of NCERT. First question we had done, second also we had done. Now third question has got these sub questions. So I am going to do all the questions. You see, it's very simple. You can do it easily. 2 base, both the numbers base are same, power will be added. So 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 5. 2 by 3 plus 1 by 5. That is 2 to the power. What is the power? 15. LCM 15. 15 divided by 3, 5. 5 to ja 10 plus 15 divided by 5, 3. 3 1 जा 3. LCM ले लिए पावर. तो प्लस करना है तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में प्लस करना तो आपको आता है. So we had done it that way. So 2 to the power 10 plus 3, 13 divided by 15. 2 to the power 13 upon 15. इसका आंसर हो गया. Because the bases are same. If base is same, power should be added, and we added the power and kept the base. Now next question, see this one. This is देखो whole to the power वाला फॉर्मूला है. x to the power m whole to the power n m into n, वही वाला फॉर्मूला. ये देखो 1, इस 1 का मतलब 1 का पावर 1 होता है, पता ना आपको. तो 1 into 7 क्या होता है, बोलो 7. 1 to the power 7 divided by 3 into 7, 21. So आप बताओ 1 to the power 7 क्या होता है, 1. 1 to the power 1 to the power 7 क्या होता है, 1. 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करो 1. नाउ 3 to the power 21. अब ये 1 हटाना चाहता है तो मैंने क्या बोला आपको, पहले याद है आपको. 1 हटाना है तो पावर क्या होगा, माइनस. माइनस हटाना है तो 1 बाई. तो देखो 3 to the power minus 21 लिख दिया, ये काम हो गया. Now next question, this one, see the bases are same and division. Bases are same and division. So base is 11 and 1 by 2 minus 1 by 4. Power minus हो गया 11 base. What is the power, you know, 2 and 4, LCM is 4. LCM is 4. So ये 4 divided by 2 minus 1, that is 2 minus 1 1. 11 upon 1 by 4. So 11 upon नहीं है, 11 to the power 1 by 4. 11 to the power 1 by 4. Clear everybody? So this also finished. Now this question, see here is multiplication. Dot means multiplication, but multiplication में base different है. So base is different, then can you apply the formula? No. Here all base same है इसलिए power minus हो गया. Here base same है इसलिए power plus हो गया, है ना. If bases are different, then we cannot apply the formula. See, इधर मैंने क्या किया, power is same है, so मैंने 7 into 8 को ब्रैकेट में ले लिया और power 1 by 2. Because power same, so उस power को common लिख लिया. अब 7 8 जा 56 power 1 by 2. 56 पावर 1 by 2. ये मल्टीप्लाई हो गया, पावर सेम है. क्योंकि पावर सेम है तो पावर को ब्रैकेट में ले लिया. इधर x to the power m मल्टीप्लाइड बाई x to the power n का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. सो पावर बेस डिफरेंट है तो फॉर्मूला कैनॉट बी अप्लाइड. यहाँ पे पावर सेम था तो पावर अपन ने कॉमन बाहर निकाल दिया और इसके बाद ये सोल्व कर लिया. क्लियर एवरीबडी? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट एक्सरसाइज 1.6. Now I am going to exercise 1.1. Now I am taking in between only, as I told you. See, exercise 1.1 में एक point आपको सिखाना है. That also today we can cover 1.1. It's the easiest exercise. Moreover, we have studied that one in class 8. See, I am writing. I'll explain you first. You listen carefully. I am writing two number. 1 by 2 and 3 by 2. 1 by 2 and 3 by 2. Okay. So here 3 by 2 and 1 by 2. कैसे भी लिखो.
these two numbers are rational number. A number which is in the form of p by q is known as rational number. P by q. P stands for numerator and q stands for denominator. Now, if the denominators are same, what is the question? Write 5 rational number या 3 rational number between the rational number. ये दोनों rational number का बीच में आपको 3 नंबर लिखना है. rational number ये अपने 8th क्लास में पढ़ा, वो सही में है ना. rational number का बीच में rational number 3 rational number 5 rational number लिखने के लिए बोल दिया. तो सबसे पहले आप देखना whether the denominators are same or not. So we find that the denominators are same. If denominators are same, then multiply them. देखो 3 by 2 multiplied by 10 multiplied by 10. 1 by 2 multiplied by 10 multiplied by 10. So both the numbers multiplied by the 10. So this is what 30 divided by 20 and this is 10 divided by 20. देखो 30 divided by 20 is 3 by 2 only. देखो कैंसिल हो गया 10 से 3 by 2. तो 10 divided by 20 1 by 2 है. तो आपने क्या किया, नंबर लिखने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों नंबर का शक्ल चेंज किया, बाकी नंबर ये दोनों सेम ही है. देखो ये 10 डिवाइड बाई 20, व्हाट इज 10 डिवाइड बाई 20? 10 से कैंसिल करो 1 by 2. और व्हाट इज 30 डिवाइड बाई 20? ये क्या हो गया बोलो 3 by 2. तो दिस नंबर्स आर सेम. मल्टीप्लाई करने के इसका शक्ल चेंज हो गया लेकिन कंटेंट सेम है, नंबर सेम है. अब आप बोलो 30 डिवाइड बाई 20 10 डिवाइड बाई 20. इसका बीच में 30 और 10 के बीच में 11 by 20 12 by 20 13 by 20 14 by 20 15 by 20 16 by 20. ऐसे 10 से लेकर 30 डिवाइड बाई 30 तक का नंबर चले जाओ. 3 नंबर पूछा तो 3 नंबर, 5 नंबर पूछ लिया तो 5 नंबर. इज इट क्लियर एवरीबडी माय डियर? सो व्हाट इज माय फर्स्ट पॉइंट? राशनल नंबर का बीच में राशनल नंबर लिखना सिखा दिया मैंने. तो फर्स्ट केस डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो आप बताओ 7 by 2 and 5 by 2 दो नंबर दिया मैंने. तो दिस इज राशनल नंबर. व्हाई इट इज कॉल्ड राशनल नंबर? दिस इज कॉल्ड राशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. p by q. तो p by q राशनल नंबर का फॉर्म में है तो राशनल नंबर है. तो ये राशनल नंबर का बीच में 3 नंबर लिखने के लिए बोला तो आपको सबसे पहले कहाँ देखना है? डिनोमिनेटर. यार डिनोमिनेटर सही में, तो इसकी टेंशन खत्म. देखो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. देखो ये क्या हो गया 70 डिवाइड बाई 20, ये 50 डिवाइड बाई 20. 50 और 70 का बीच में 51 बाई 20 52 बाई 20 53 बाई 20 54 बाई 20 55 बाई 20. ऐसे जितना 70 का बीच में जितना नंबर है, जितना पूछा 5 है तो 5, 10 है तो 10 लिख लेना. क्लियर एवरीबडी? एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल क्लियर है ना. अब आप मेरे को बताना, अब आप मुझे बताना दूसरा पॉइंट मेरे को ये बताना है. दैट इज इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट 7 by 2 and 5 by 3. दो राशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है. इस राशनल नंबर का बीच में राशनल नंबर लिखने के लिए बोल रहे हैं. 3 राशनल नंबर, बट here the numbers different. What is the difference? The difference is the denominators are not same. डिनोमिनेटर अलग अलग है. अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आपको इसका एलसीएम लेना है. 3 2 का एलसीएम क्या है? 6 एंड इधर भी 6. समझ में आ गया? अब 6 डिवाइडेड बाई 2 3 3 इंटू 7 21. 6 divided by 3 2 2 into 5 10. देख 21 by 6 21 by 6 क्या है? इट इज 7 by 2 ओनली. 3 से कैंसिल करके देखो, 3 से कैंसिल करो 7 by 2. तो अपने शक्ल चेंज करके आ रहा है नंबर, लेकिन इन दोनों के नंबर का क्या हो गया बोलो? डिनोमिनेटर सेम हो गया. समझ में आया आपको? अब देखो ये 10 डिवाइड बाई 6, आप 2 से कैंसिल करो 5 by 3 है. तो अब आपको डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब ये दोनों नंबर बराबर है तो अपन इसका बीच में नंबर लिखो या इसका बीच में नंबर लिखो, बात एक ही है. इसीलिए अपन देखो 10 by 6 और 21 by 6 का बीच में नंबर लिखेंगे. व्हाट इज 10 by 6 का आगे नंबर क्या है बोलो? 11 by 6 12 by 6 13 by 6 14 by 6. ऐसे करके जितना 5 नंबर पूछा तो 5 नंबर, 6 नंबर पूछ लिया तो 6 नंबर. क्लियर? एक और मैं क्वेश्चन दे दूं. राइट 3 राशनल नंबर between 9 by 2 and 4 by 5.
9/2 and 4/5, right? 3 rational number between 9/2 and 4/5. तो आपने 5 2 जा क्या हो गया 10, 5 2 जा 10, एलसीएम ले लिया। एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर लो। अब 10 डिवाइड बाई 2 5, 5 इंटू 9 45, 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 इंटू 4 8। ये दोनों इसका बराबर का फ्रैक्शन लिख लिया। इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो ये देखो 8/10, अभी 9/10, 11/10, 12/10, ऐसा 45/10 का बीच जितना नंबर चाहिए उतना नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर जो पूछा वो लिख लेना। क्लियर एवरीबॉडी? कोई दिक्कत? नो। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज 0 इज अ rational number? Yes. 0 is also a rational number because 0 can be written as 0 divided by 1, in which the number is in the form of p by q. p 0 and q 1. Any number 0 से डिवाइड किया तो 0 ही होता है। तो 0 is also a rational number. Is 3 is a rational number? Yes. 3 can be written as 3 by 1 because it is also p and every number can be written as divided by 1. Divided by 1. तो divided by 1 है तो वो क्या हो गया बोलो? rational number हो गया। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अभी आपको देंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, तो आप करना इसमें व्हाट इज द राइट 4 या 3 rational नंबर बिटवीन 3 and 4। तो आप ये मत सोचना यार 3 और 4 तो rational नंबर ही नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं है। डिनोमिनेटर है, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 1। व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 1। एवरी नंबर इज अ rational नंबर, नेचुरल नंबर इज अ rational नंबर बिकॉज इट हैज गॉट डिनोमिनेटर 1। अपन लिखता नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। तो आप बताओ 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 2 का 1 है, डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी 10 से, इधर भी 10 से, 30 डिवाइडेड बाई 10, 40 डिवाइडेड बाई 10, 40 डिवाइड बाई 10 4 ही होता है। अब राइट 3 नंबर मतलब क्या लिखेंगे? 31 डिवाइड बाई 10, 32 डिवाइड बाई 10, 33 डिवाइड बाई 10, 34 डिवाइड बाई 10, 35 डिवाइड बाई 10, ऐसे लिख देना। समझ में आया ना आपको? तो क्या पॉइंट में क्या पॉइंट सिखाया मैंने, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ आज। व्हाट इज अ rational नंबर? Any number which can be represented in the form of p by q. Is 0 is a rational number? Yes. If 5 is a rational number? Yes. Why? 0 can be written as 0 divided by 1. 5 can be written as 5 divided by 1. 11 can be written as 11 divided by 1. 12 can be written as 12 divided by 1. Now, write 3 rational number between the rational number या 5 rational number between the rational number. दोनों को डिनोमिनेटर देखना, डिनोमिनेटर सेम है तो 10 से मल्टीप्लाई करो फिर लिख लो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, केस नंबर 2, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। क्या लेना है? एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर सेम बना दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड राइट नंबर। दिस all the things which I taught today you be studied in 8th class. So please revise. Point wise I taught what is rational number, how to write 3 या 4 rational number in between 2 rational number। 2 rational नंबर का बीच में कैसे 3 rational नंबर लिख सकता है, मैंने आपको बताया। उसमें 2 मेथड है, एक डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे इजी मल्टीप्लाइड बाई 10 करके करना। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर जिस मोमेंट पे सेम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड देन यू राइट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? दैट्स अ टॉपिक टुडे। प्लीज डू द एक्सरसाइज 1.1।